Yes, a very good afternoon to all of you. So today we are going to study about the introduction part, first chapter, physical world. Physical world evaluation, by evaluation point of view, does not carry so much marks in your exam, but yes, the way the introduction of anything is very important. Similarly, the chapter physical world act as an introduction for the physics in 11th standard. So it is very important for you to learn directly, rather than learning units, measurement, this and that. We will have a brief introduction about the physics, why you have opted for science and not for arts or not for commerce, what is that aptitude that make you inclined towards the science stream in 11th standard. So we'll quickly discuss about it. So from your previous classes also you have studied about science, right? What makes science different from all other subject, what makes physics different from all other subjects, right? So as we are studying science maybe from 6th and 7th standard, science refer to the organized knowledge. Say suppose there is a wrestler and a wrestler comes and fights with the other wrestler, right? So what you will say, क्या चीज है जो wrestler में, is it science or what? You will say that he has a art, उसके पास ये आर्टिस्टिक स्किल्स हैं जिसके वजह से रेसलिंग का आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, that is why he has defeated the other wrestler. Similarly, someone is good at drawing, that is again a part of art, but someone is good in observing the things around, observing the nature around, observing and experimenting and trying all that. So it means he or she has inclination towards science. So science basically क्या है? Science is an organized knowledge. हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनाइज नॉलेज. अब ऑर्गेनाइज नॉलेज ये कैसे बना, व्हाट इज दैट मेक्स इट ऑर्गेनाइज नॉलेज, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो साइंस as compared to all other subjects, say social science, say literature, say languages, all that, how is science different, why we say कि science organized knowledge है, are all others are not organized knowledge, that difference we are going to discuss here, right? So first of all, the basic definition of science, it is a organized, systematic and formulated knowledge. Organized, सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज. हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट नेचर, वी आर स्टडिंग अबाउट द नेचुरल फिनोमिना. तो ये ऑर्गेनाइज या फॉर्मुलेटेड, इतने हैवी वर्ड्स हमने क्यों यूज किए साइंस के लिए, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दैट, राइट? सो इट इज अ फॉर्मुलेटेड नॉलेज, और हम सिंपली कहते हैं साइंस क्या है, साइंस ऑर्गेनाइज नॉलेज है. कैसा ऑर्गेनाइजेशन, या हम कहें कि किस तरह से ऑर्गेनाइज है, व्हाट आर द स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइज नॉलेज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस ऑल दीज स्टेप्स. Number one is observation. अभी when these things were not very known, if we talk about 1000 or 2000 years back, someone observed कि morning हो रही है, sun is this side, but evening में sun is that side. Someone observed कि rain is falling, and at the time of rain, if there is sunlight also, rainbow can be seen. Someone observed that after a particular period of time, the position of sun is changing in the sky. Someone observed that okay, there are 7 colors in the rainbow. So सबसे पहला स्टेप क्या आता है ऑर्गेनाइज स्टडी में, ऑब्जर्वेशन. किसी ने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मून का साइज डिक्रीज हो रहा है या मून दिखना बंद हो गया. किसी ने ऑब्जर्व किया कि चीजें नीचे की तरफ ही क्यों गिर रही हैं, क्या है जो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ. सो द फर्स्ट प्रोसेस इन दिस ऑर्गेनाइज स्टडी इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन. किसी ना किसी ने ये ऑब्जर्व किया, राइट? सेकेंड स्टेप्स कम्स टू बी हाइपोथेसिस. अभी किसी ने ऑब्जर्व करके कह दिया कि सन का जो पोजीशन है वो ईस्ट से हम देखते हैं एंड इवनिंग में वो पोजीशन वेस्ट की तरफ हो जाता है. या किसी ने बोला कि सन जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, दूसरे ने बोला नहीं सन रोटेट नहीं कर रहा, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन. सो दिस हाइपोथेसिस वर गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया, दूसरे ने उसको कहा ही इज राइट. सेकंड साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया, लेकिन लोगों ने क्या कहा, दिस इज रॉन्ग. सो हाइपोथेसिस मीन्स कोई भी आपने एक लॉ बना दिया, एक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे बोल दिया कि ये चीज ऐसे होने वाली है. सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस कुड बी टर्न करेक्ट and hypothesis could be turned wrong. जैसे I hope you must be aware, there was a very great scientist also called as the father of physics, Galileo. From last 1500 years, people were saying, the people related to a particular community were saying that sun
द अर्थ इज द सुप्रीम प्लैनेट, और अर्थ कहाँ है, सेंटर में, और जो भी सन है, जो भी स्टार हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, मून है, ये सारे के सारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. दीज ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. बट देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड गैलीलियो. ही सेड नो नो, दिस इज ऑल रॉन्ग. It is, he gave a heliocentric theory. Heliocentric theory means no, earth is not the center, sun is the center, and earth and all other planets are revolving around it, right? Although the same theory was given by Aryabhatta in 5th century BC, right? But as we were not that much exposed to the western world, so उस थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, right? So in 16th century गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये गलत थ्योरी है, सन इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग. So what happened? You must be aware, he was hanged to death because that went according to the people of church. Because they wanted earth is a supreme planet, बाकी सब चीजें अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, and this person is talking about religion, let us hang, and publicly he was hanged for the same. बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए and it was proved that heliocentric theory Galileo was right, but till then we lost such a great साइंटिस्ट. तो वो थ्योरी क्या थी, ठीक थी. सो ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा क्या आता है, हाइपोथेसिस आता है. हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं. जैसे हमने देखा कि रेनबो में 7 कलर्स हैं. अभी हम क्या करेंगे, हम एक शावर लेंगे, हम एक बल्ब लेंगे या टॉर्च लेंगे या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, और हमने शावर और लाइट सोर्स को करके देखा. हमने लैब में किया, हमने घर में किया, तो ये क्या हो गया, दिस इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. कोई भी चीज जो हमने नेचर में ऑब्जर्व की और किसी पर्सन ने बोल दिया कि ये चीज ऐसे है, उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उसको प्रूव करने के लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है. जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन. Yes, so a controlled experiment is done in order to prove कि ये जो पर्सन बोल रहा है इसका हाइपोथेसिस ट्रू है, फॉल्स है, क्या है इसके अंदर. So हम उस चीज को करके देखते हैं. हमने एक बॉल लिया और बॉल पे इधर से लाइट डाली. हमने क्या किया, एक सेकंड बॉल को उसके चारों तरफ रोटेट कराया और हमने क्या देखा कि यहाँ तो लाइट आ रही है, लेकिन जब ये टॉर्च के ऑपोजिट साइड में जा रहा है तो लाइट नहीं आ रही. इसका मतलब हो सकता है अर्थ सेंटर में और सन घूम रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सन सेंटर में और अर्थ घूम रही हो. सो ये सारी चीजें जो हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक लैब में करके देखी गई, इनको हमने किस कैटेगरी में डाला, इनको हमने डाला यस इन सब चीजों को हमने कहां पे करके देखा, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हमने करके दिया. वी हैव डन एक्सपेरिमेंटेशन, राइट. तो सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद हाइपोथेसिस आया, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन आया, राइट. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन लैब, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ पीपल, एंड देन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने क्या किया, एनालिसिस किया. उसका एनालिसिस कैसे किया, हाँ, अगर हम ये इस तरह से बॉल को रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब डे एंड नाइट, इट कुड बी रिलेटेड टू डे एंड नाइट. इतने टाइम के बाद अर्थ यहां पहुंच रही है तो वेदर चेंज हो रहा है, समर सीजन ऐसे हो रहा है, विंटर सीजन ऐसे हो रहा है. तो हमने उसका क्या किया, एनालिसिस किया, हमने एनालाइज किया, हाँ भाई ऐसा होता है. हमने इसको लैब में करके देखा, यस ऐसा होता है, चीजें अर्थ की तरफ गिरती हैं, अर्थ हर एक चीज को अट्रैक्ट करती है इस तरह से, राइट. सो हमने ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, राइट. उसके बाद एनालिसिस भी 2 तरह का हो सकता है. पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंडरी इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस. हमने कहा कि कोई भी चीज जो अर्थ की तरफ गिर रही है, इसका मास मैंने 10 ग्राम लिया, ये अर्थ की तरफ जा रही है. इसका मास मैंने 100 ग्राम लिया, ये भी अर्थ की तरफ जा रहा है. मैंने क्या देखा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट्स में एक चीज सेम थी. अर्थ जिस वैल्यू से उसको एक्सेलरेट करिए, दैट वैल्यू इज करेक्ट. तो मैंने एक एनालिसिस दे दिया कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, राइट. एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. जितना किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगा उतना ही वो एक्सेलरेट होगी, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स. और बाद में प्रूव करके मैंने निकाल दिया F इज इक्वल टू ma. तो मैंने क्या बताया, मैंने F की क्वालिटी बताई. कैसे बताई क्वालिटी, कि F जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, वो उसके मास पे डिपेंड करता है और उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. 2 चीजों पे डिपेंड करता है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस. मैंने क्वालिटी बता दी, मैंने फैक्टर्स बता दिए, फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व बता दी, कि अगर किसी ने ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस दिया और उसको करके देखा गया लैब में, गैलीलियो ने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर करके फोर्स का पता लगाया. तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि फोर्स किस 2 चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सेलरेशन पे.
राइट। सेकेंड थिंग, डू नॉट चैट चिल्ड्रन। हमने देखा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दो बॉडीज ली, दोनों के बीच का मास पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये हमने क्या बताया, हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के मास पे डिपेंड करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। ये चीज हमने क्या किसमें लाई, ये चीज हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रूव की। लेकिन किसी दूसरे पर्सन ने बोला कि अच्छा क्वालिटेटिव एनालिसिस बता दिया, अभी इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, इसको इंक्रीज किया, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे 4, कैलकुलेट किया, फिर इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो देखा ये भी डबल आ गया। तो जब उसमें क्वांटिटी हमने रखी है, जब उसमें वैल्यूज हमने रखी, और तब भी हमने क्या पाया कि हाँ भाई ये वाला एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, तो हम क्या बोलेंगे, हमने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करके देख लिया। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हमने ये पता लगाया कि ये फैक्टर ए फैक्टर बी सी डी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव से क्या हुआ, हमने बी सी डी की वैल्यू रखी, हमने एम को चेंज किया, ए को चेंज किया, एम को इंक्रीज डबल कर दिया, हाफ कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 7 टाइम, 10 टाइम, और हमने क्या देखा, एफ भी इतने ही टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो हमने क्या किया उसका, हमने उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हमने पता लगाया कि फोर्स इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब मास को डबल किया तो फोर्स डबल होगा, या एक्सेलरेशन को हाफ किया तो फोर्स हाफ होगा। ये क्वांटिटीज रखने के बाद जो वैल्यूज आई, उनको हमने किस कैटेगरी में रखा, उनको हमने रखा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की कैटेगरी, राइट। देन आफ्टर दिस, अभी ऑब्जर्व कर लिया, हाइपोथेसिस दे दिया, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करके देख लिया। फाइनली हमने क्या किया, हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अभी मुझे नहीं पता F इज इक्वल्स टू एम ए, ये एम स्क्वायर ए क्यूब हो सकता है, ये एम क्यूब ए स्क्वायर हो सकता है, एम इंटू ए। हमने क्या किया, हमने सारे फैक्टर चेंज किए, एम का स्क्वायर किया, थर्ड क्यूब किया, 4, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स में हमने चेक किया। फॉर्मूला कोई भी बनाना, फोर्स डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन पे। कितने टाइम्स मास पे, हमने मास लेना है, मास का स्क्वायर लेना है, मास का क्यूब लेना है, कौन सी पावर लेनी है, अंडर रूट एम तो नहीं लेना, या अंडर रूट ए तो नहीं लेना। ये सब एक्सपेरिमेंटेशन बार बार क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ F किसके बराबर है, M इंटू ए के बराबर है। F किसके बराबर है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर ही है, यहाँ पे R क्यूब नहीं आ सकता, R नहीं आ सकता, R की पावर 4 नहीं आ सकता। सो सारी चीजों का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हमने एक रिजल्ट निकाला। उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। इसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग या फॉर्मूला। किसी भी चीज का मैथमेटिक्स की टर्म्स में एक्सप्रेशन बनाना कहलाता है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग करके बता दिया कि एफ का फॉर्मूला क्या होगा, एम इंटू ए। अभी आप चेक कर लो, अभी इसको डबल कर लो, इसको हाफ कर लो, इसको 5 टाइम्स कर लो, 10 टाइम्स कर लो, नाउ इट इज अप टू यू। मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हमारा एफ, एम और ए तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये क्लियरली पता चल गया, राइट। इसके बाद हमने किया प्रिडिक्शन, राइट। प्रिडिक्शन कैसे, अभी हम कह सकते हैं अगर मैं मास को डबल करूं तो फोर्स डबल हो जाएगा। अगर मैंने मास को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, कीपिंग एक्सेलरेशन सेम, तो फोर्स भी डिवाइडेड बाय 5 हो जाए। अभी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर लिया, राइट। whenever we are, that we will discuss later, whenever we are deriving new term, यहाँ पे जब भी हम न्यू टर्म डिराइव करते हैं, जैसे हम इस फॉर्मूले में पहली बार फोर्स को डिफाइन कर रहे थे, तो जब भी हम किसी भी चीज को पहली बार डिफाइन करते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 1 रहता है। whenever we are introducing a new physical quantity, we always keep constant as 1. we will discuss it in the laws of motion chapter. तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने प्रेडिक्शन बता दिया। मैंने बता दिया कि अभी देखो अगर मून, सन और अर्थ के बीच में आया है तो अभी सोलर इक्लिप्स हुआ, अभी आज से 53 डेज 5 आवर्स के बाद सोलर इक्लिप्स दोबारा होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया। आई कैन डू प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस। सो प्रिडिक्शन किया, लेकिन हुआ क्या, मैंने बोला 53 डेज के बाद सोलर इक्लिप्स होगा अपने कैलकुलेशन से, अपने मैथमेटिकल मॉडलिंग से, लेकिन हुआ क्या, 55 डेज के बाद हुआ। तो मेरी थियोरी क्या हो गई, फॉल्स, फेल हो गई। फिर से मुझे कहां जाना पड़ेगा, स्टेप 1 पे, या सेकेंड ऑप्शन, मेरी थ्योरी 53 डेज के बाद ही सोलर इक्लिप्स पड़ा, तो क्या हो गई, वो थ्योरी वेरीफाई हो जाती है, और वेरीफाई होने के बाद दैट थ्योरी कम्स टू योर टेक्स्ट बुक, दैट थ्योरी, उस पर फिर लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर सेंड करते हैं, एंड दैट बिकम्स अ लॉ, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ वन मोर थिंग टू ऐड हियर, कोई भी चीज
nothing is final in physics, no theory is final theory in physics, keep that. We always have so many aspects open for studying physics, subject like physics. ऐसे ही हम किसी भी लॉ को फाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि say years after years, centuries after centuries, there are so many inventions going on all around. So we cannot say न्यूटन ने जो सारी चीजें कही थी वो ठीक है, वी कैन नॉट से, क्योंकि न्यूटन की बहुत सारी थ्योरीज फेल हुई, नई नई थ्योरीज आई. सो वी शुड ऑलवेज बी दैट मच ब्रॉड माइंडेड सो दैट वी ऑलवेज वेलकम न्यू रिसर्चेज एंड न्यू थ्योरीज. सो ये सब करने के बाद प्रिडिक्शन दिया, प्रिडिक्शन ठीक हो गया तो वो थ्योरी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई. और अगर प्रिडिक्शन रॉन्ग हुआ तो फिर हम क्या कहेंगे, ये फलाना फलाना थ्योरी वाज फॉल्सिफाइड. देन again we have to go to step 1, again hypothesis देना पड़ेगा, again experimentation, again qualitative, quantitative, everything we have to do, again एक नया mathematical model बनाना पड़ेगा, नया formula, again we have to predict, and again verification will make that as the theory, right? I hope this is clear to all of you. So this was a brief introduction of the physical world.